عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کا توفیق شیخ کے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم 7ویں جماعت کے جنرل سائنس کا پہلا سبق، جس کا نام ہے جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی، اس کا 5واں پارٹ شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے چوتھے پارٹ میں پانی میں رہنے والے حیوانات کا توافق اور جل تھلیے حیوانات کا توافق، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ چلیے آج آگے کا دیکھتے ہیں۔ آج ہم جنگل اور گھاس کے علاقوں میں رہنے والے حیوانات میں توافق کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ایڈپٹیشن ان فارسٹ اینڈ گراس لینڈ اینیمل۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جنگلی کتے، لومڑی، شیر، ببر شیر جیسے گوشت خور حیوانات کے پیر مضبوط ہوتے ہیں۔ ان حیوانات میں بڑے بڑے ناخن اور نوکیلے اور چیرنے والے دانت پائے جاتے ہیں۔ بچوں، اب یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آپ اپنے گھر میں موجود بلی کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بچوں، ان کے ناخن دیکھیے کیسے ہوتے ہیں، پیروں میں بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، اور ان کے دانت کیسے ہوتے ہیں، دیکھیے کیسے ہوتے ہیں، نوکیلے اور چیرنے والے۔ بچوں، ایسے دانتوں کا یہ جانور کیا استعمال کرتے ہوں گے؟ کیا کرتے ہوں گے؟ بالکل صحیح، اپنے شکار کو چیرنے اور پھاڑنے کے لیے وہ اپنے دانتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب شیر کے پیروں کے تلوے گدی دار ہوتے ہیں۔ بچوں، اب شیر کے پیروں کے تلوے آپ کہاں دیکھنے جائیں گے؟ آپ اپنے گھر میں جو بلی ہے اس کے پیروں کے تلوے دیکھ لیجئے، آپ کو گدی دار یعنی نرم نرم دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بچوں؟ تاکہ ان کے چلنے پر ان کے پیر کی جو آہٹ ہے وہ ان کے شکار محسوس نہ کر سکیں اور وہ آسانی سے اپنے شکار کو دبوچ سکیں۔ اس لیے یہ گوشت خور حیوانات کے پیر گدے دار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ گوشت خور حیوانات کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا بچوں، وہ آنکھوں کا مقام ان کے سر کے مخروطی حصے کے سامنے کی جانب ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جس کی وجہ سے وہ اپنے شکار کو دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہوئی گوشت خور حیوانوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں سبزی خور حیوانات کی طرف۔ سبزی خور حیوانات کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا بچوں، وہ ان کی پیشانی کے نیچے کے بازو میں ہوتی ہے، نیچے کے سائڈ میں ہوتی ہے اور بازو کی جانب ہوتی ہے۔ سبزی خور حیوانات میں آنکھیں پیشانی کے نیچے اور بازو کی جانب ہوتی ہے۔ یہ بازو کی جانب کیوں ہوتی ہے؟ جس کی وجہ سے وہ بہت وسیع علاقے کو دیکھ پاتے ہیں اور اپنے دشمن سے بچاؤ کا انہیں موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اطراف کی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں سائڈ میں ہونے کی وجہ سے، بازو میں ہونے کی وجہ سے۔ سبزی خور حیوانات کے پیر مخروطی پتلے ہوتے ہیں اور ان کے کھر مضبوط ہوتے ہیں۔ بچوں، کھر پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے بکرے کے پیر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا، نچلا بالکل، یا گھوڑوں کی نال جہاں لگاتے ہیں، اس حصے کو کہتے ہیں
खुर, ये बहुत ही मजबूत होते हैं बच्चों। ये मजबूत किस लिए होते हैं? इनकी मजबूती की वजह से इन हैवानात को छलांग लगाते वक्त या तेज़ी से भागने के लिए इन खुर की मदद होती है। ठीक है, तो ऐसे हैवानात की हरकत करने वाले लंबे और दूर की आवाज़ को सुनने वाले कान होते हैं। समझ में आया बच्चों? ऐसे हैवानात में कान कैसे होते हैं? हरकत करने वाले। आपने खरगोश वगैरह का मुशाहिदा किया ही होगा। उनके खरगोश, हिरन, उनके कान हरकत करते हैं, जिसकी वजह से वो दूर की आवाज़ सुन लेते हैं। दूर की आवाज़ सुन लेते हैं। ठीक है, और हिरन और बारहसिंगा का रंग जो होता है बच्चों, वो माहौल से मिलता जुलता होता है। क्यों बच्चों? ताकि वो अपने शिकारी से वो बच सके। ठीक है, अब सब्जी खोर जो हैवानात होते हैं बच्चों, उनके दांत बहुत मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं? ताकि वो नबातात के तनों को चबाकर खा सकें। तो बच्चों, ये मालूमात मैं अभी जो दिया वो मालूमात है किसकी? जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में तवाफुक। ठीक है, ज़रा इनकी फ़ोटो देख लीजिए। बब्बर शेर, इसके दांत कैसे हैं? नोकीले। बारहसिंगा की फ़ोटो भी आपको दी गई है। ठीक है, आपकी किताबों में भी ये तस्वीर मौजूद है, गौर से इसका मुताला कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अभी मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं रेगिस्तान के हैवानात में तवाफुक। एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। बच्चों, आपको मालूम ही है क्या? रेगिस्तानी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत होती है बच्चों। ठीक है, इसलिए इस इलाकों में रहने वाले हैवानात की जो जिल्द होती है बच्चों, वो मोटी होती है। उनके पैर लंबे होते हैं और तलवे गद्दीदार और फैले होते हैं। फैले हुए क्यों होते हैं? ताकि इनके पैर रेत में चलते वक्त धंस न जाएं, उन्हें चलने में आसानी हो। और इन हैवानात के नाक पर जिल्द की झालर होती है। क्यों होती है बच्चों? ये जिल्द की झालर उनकी नाक को उड़ने वाली रेत से महफूज रखती है। ठीक है बच्चों, ये कुदरती बनावट हर चीज़ हैवानात में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, ये हर एक पॉइंट आप समझो और लिख कर लो बयानों में। अब आते हैं, पपूटे लंबे और मोटे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि रेत की ऊपर की सतह गर्म होती है और इसलिए वो बिल बनाकर ज़मीन के काफ़ी नीचे रहते हैं, ताकि वो गर्मी से थोड़ी उनकी हिफाजत हो सके बच्चों। ठीक है, तो रेगिस्तान के हैवानात कौन कौन से हैं? यहाँ आपको शक्ल में दिखाया गया है। ऊँट को क्या कहा जाता है बच्चों? रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ठीक है, मकड़ी है और बहुत सारे दीगर सांप वगैरह हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं बच्चों। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफुक।
बर्फानी इलाकों में जो हैवानात होते हैं ना बच्चों, उनकी जिल्द पर लंबे और घने बाल होते हैं बच्चों, और उनका रंग सफ़ेद या रुपहरी होता है। उनके क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कि उनकी जिल्द पर बाल इतने लंबे क्यों होते हैं? इसका उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ बच्चों। ये उनकी जिल्द पर लंबे बाल होने की वजह से बर्फानी इलाकों की जो शदीद सर्दी होती है ना बच्चों, इन बालों की वजह से उन हैवानात की सर्दी से हिफाजत होती है। इसीलिए उनकी जिल्द पर लंबे लंबे घने बाल होते हैं। अगर बच्चों आपको बर्फानी इलाकों के हैवानात देखने हैं तो कुछ नाम ऊपर आपको दिए गए हैं, वो उन हैवानात की फ़ोटो आप इंटरनेट से ले सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ उनके अपलोड करूँ इस सबक से पहले, इस पॉइंट से बाद में, ठीक है। तब तक आप भी इंटरनेट से देख सकते हैं, या फ़ोटो किताबों में या डिस्कवरी चैनल पर भी दिखाते हैं इन चीज़ों के। क्या है? याक, कुतबी रिछ, सफ़ेद भालू, सफ़ेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, चंदेरी लोमड़ी, साइबरियाई हिस्की कुत्ता, जो वो खींचते हैं ना गाड़ी, बर्फ़ की गाड़ी, वो कुत्ते खींचते हैं बच्चों। आपने डिस्कवरी में या कई फिल्मों में भी देखे होंगे, ठीक है। बर्फ़ानी कुत्ते, इसकी तस्वीर आप इंटरनेट से हासिल कीजिए और उनकी बनावट देखिए बच्चों। ये बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले हैवानात होते हैं। इनकी जिल्द पर बहुत ही घने बाल होते हैं। किस लिए होते हैं? ताकि वो बर्फ़ानी इलाकों की सर्दी से महफूज रह सके बच्चों, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट, यहाँ पर हम ये पार्ट, पांचवा पार्ट ख़त्म करते हैं बच्चों, ठीक है। छठे पार्ट में अगले पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो पांचवा पार्ट जो है पहले सबक का, वो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।